Good morning, students. Today we are going to discuss today's topic on गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इसको सॉल्व करना है या कैसे इसकी स्ट्रेटेजी में स्टेटमेंट है, प्रूफ कैसे करना है और इसको हम लोग किस किस वे में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट है कि स्टेट एंड प्रूव द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। सबसे पहले स्टेटमेंट्स है। इट स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड E over a closed surface S is equal to the volume integral of the divergence of the vector E over the volume V enclosed by the surface S. So mathematically we write it as closed surface integral E dot ds is equal to volume integral V divergence dot E dv। सरफेस इंटीग्रल क्लोज था तो ds लगा दिया हमने, अगर हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल था तो dv लगा दिया। प्रूफ में क्या है? लेट अस कंसीडर ए पैरेललोपाइड ऑफ वॉल्यूम v। लेट दिस पैरेललोपाइड इज प्लेस्ड इन ए वेक्टर फील्ड E। आप कोई भी फंक्शन ले सकते हो, a भी ले सकते हो, E भी ले सकते हो। लेट द वॉल्यूम b be divided into a large number of elementary volume, say V1, V2, V3, so on, Vn as shown in figure. The electric flux per unit volume through a closed surface around a point in the divergence of the field at that point is 1 upon B closed integral surface integral E dot ds is equal to V dot या डेल डॉट E। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू V, हमने सामने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, डाइवर्जेंस ऑफ E इंटू V। अब हमारे पास क्या है, जैसा हमने अभी सपोज किया था कि वी हैव n नंबर ऑफ एलिमेंट्री वॉल्यूम्स है, तो फॉर n नंबर ऑफ वॉल्यूम्स वी राइट इट एज, पहला एक V1 ले लेंगे, फिर V2 ले लेंगे, फिर V3 ले लेंगे, ठीक है। सरफेस एरिया उसका ds रहेगा और वॉल्यूम V1 है, सरफेस S1 रहेगा, S2 रहेगा, सो ऑन Sn तक चला जाएगा। तो उसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। क्लोज सरफेस इंटीग्रल S1 E डॉट ds इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ E इंटू V1। सिमिलरली फॉर क्लोज सरफेस इंटीग्रल S2 E डॉट ds इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ E इंटू V2, सो ऑन क्लोज सरफेस इंटीग्रल Sn E dot ds is equal to divergence of E into Bn. Total outward flux through the volume या whole volume V is given by summation I varies 1 to n E dot ds in the closed integral surface Si, then it is equal to summation I varies to 1 to n divergence of E इंटू वी आई, क्योंकि वॉल्यूम V1 है, V2 है, V3 है, सो ऑन। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। सो द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए गिवन वेक्टर विद इन द इंटीरियर ऑफ द सरफेस कैंसल ईच अदर। अब क्वेश्चन राइज होता है कि हाउ दे कैन कैंसल ईच अदर द इफेक्ट। इट इज ड्यू टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ईच एरिया एलिमेंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दोज ऑफ इट्स नेबर। So we are left with the surface integral over the boundaries surface S, with that is summation I varies 1 to n closed surface integral Si d dot ds is equal to closed surface integral E dot ds from equation number 1, which can be written as summation closed integral as E dot ds is equal to summation I varies 1 to n V dot या divergence dot E या divergence of E into V I। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को वहां पुट कर लिया, लेके लेफ्ट हैंड साइड जो वो पुट की थी उसको इक्वल किया, फिर हमने वहां उसकी वैल्यू पुट कर दी, summation I varies 1 to E dot ds के बराबर। तो सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं किया। As you know that if n approaches to infinity,
then each volume Bi will shrink to 0. It means that the total volume constant. Thus we have closed surface integral E dot ds is equal to limit n infinity approaches to infinity and Bi approaches to 0, then summation I varies 1 to n divergence of E into Bi. Let it be equation number 2. As Vi approaches to infinity, the sum of the Vi approaches, sorry Ni नहीं, यहाँ पे Vi approaches to infinity, so sum of the right hand side of the sorry Vi तो infinity हो ही नहीं सकता, Vi हमने क्या लिया हुआ 0 लिया हुआ, वो तो Ni infinity हो सकता, V हो ही नहीं सकता. So sorry, as Vi approaches to 0, so sum of right hand side of equation 2 can be replaced by the volume integral and Vi becomes dV. So the equation number 2 will be reduced to as closed surface integral as E dot ds is equal to volume integral divergence of E into dV. This is the Gauss divergence theorem. अब ये जो थ्योरम से आई है हमारे पास, ये क्या इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करती है? द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड इनटू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड एंड वाइस वर्सा. या यहां से नटशल में मैं ये भी बोल सकता हूं कि जब भी हमारे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का क्वेश्चन आएगा या गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हम बात करेंगे कहीं भी, तो आपने याद रखना है कि ये क्या करती है, सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्शंस होती है. इसकी सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल में इसकी कन्वर्शंस होती है. ये ध्यान रखना कि आपको सरफेस से वॉल्यूम कन्वर्शंस करनी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एग्जाम में ये मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आता है हमारे पास. तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसी क्वेश्चंस की आपको असाइनमेंट भी दे रहा हूं कि इस चैप्टर से हमारी जो पहला क्वेश्चन बनता है असाइनमेंट का वो यही है कि स्टेट एंड प्रूव गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. आपने क्या करना है, एक अपने रजिस्टर खरीद लेना है. उस रजिस्टर्स में आपने क्या करना, क्वेश्चन नंबर 1 डाल के इसको कैसे लिखना कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, स्टेट एंड प्रूव गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. आपने ये क्वेश्चंस करना है. ये आपके लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और एज ए असाइनमेंट भी होगा और फाइनल में भी है, क्योंकि ये 2018 में ये क्वेश्चन हमारे लिए जो एनुअल एग्जाम था उसमें पूछा गया था. और क्या है कि अभी हमें दिवाली फेस्टिवल्स भी है, इसमें हमारी क्लासेस तो ऑफ ही है, पर आप क्या करो, इनमें जितना भी हमारा पिछला जो वर्क किया हमने वो उसको रिपीट कर लो, उसको लर्न करो. अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे ऑफ द रिकॉर्ड पूछ सकते हैं, ठीक है, जब भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या मुझे कॉल भी कर सकते हैं. पिछला सारा रिपीट कर लो, लर्न कर लो उसको, और अपनी कॉपी में जो है पॉइंट्स है या डाउट्स है उसको नोट आउट कर लो. और इसका जो आर्टिकल्स आज मैंने दिया आपको, ये आपने क्या करना है, करके इसकी पिक्स जो है मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भेजनी है. Hope you enjoyed this lecture. Thank you very much.